Okay, good evening, everyone. Uh, Myself, Deepak Gupta. I'm a graduate of IIT Kharagpur and I teach physics here. Good evening, everyone. I think 7 or 8 participants have already joined. So, am I audible to everyone? Just make sure everyone switch on your. Yeah, okay. So, let's see, let's hear out. Is it clear to everyone? So yeah, you are well. Uh, one thing is, one thing is if everyone use your own name, student's name, instead of parents' name, so it will be better. So in participant section, you can edit your name. You can rename yourself. So everyone, it's better to use your own name instead of your parents, because by default it takes whatever is the name of computer or device from which you are logging in. Okay, so let's hear one by one. Tejasi, am I audible to you, Tejasi? Hello, Tejasi. Okay. Miss Sangeeta, am I audible to you? Okay. Other Varda, am I audible to you? Okay. While answering, you can switch on your mic. Then again, you can switch it off after that. So if I'm asking to you, I'm asking some particular criteria, so you can switch on your mask and then you can answer. Yes. Okay, good. Uh, Rajvardhan, Rajvardhan, is it okay? Sir. Okay, good. Dinner, Actually, it's Dhruv. okay. That's what I told कि आप पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाके अपना नेम एडिट कर सकते हैं. यू कैन रीनेम योर सेल्फ. सो पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाके आप लोग रीनेम कर ले एंड यूज योर ओन नेम इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स. वो बाय डिफॉल्ट लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में जिसका नेम होगा ऑलरेडी उसी का नेम आएगा. सो इट्स बेटर कि आप अपना स्टूडेंट नेम यूज करें, जिससे हम लोग के कन्वर्सेशन में इजी रहेगा. तो एक्चुअली ये क्या है, ये ऑनलाइन लेक्चर नहीं है, ये क्लास है. दैट मीन्स इट विल बी अ टू वे चैनल. तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आप लोग आंसर भी करेंगे. सो एक चीज सब लोग को ध्यान देना है, वन थिंग, कि कुछ भी आप आंसर कर रहे हो तो अपना माइक स्विच ऑन करें, आंसर करें, देन स्विच ऑफ. ओके, सो माइक आप ऑन ऑफ करते रहें, जब भी मैं पूछूं देन ओनली ऑन. ओके, लेट्स सी. आई थिंक दिस लास्ट पर्सन तेजस्वी, अभी तक कुछ आंसर नहीं किया आपने. Am I audible to you, Tejasi? Okay, we'll start just in a while. I'm not seeing any actually mic symbol in Tejasi. Okay, everyone, just wait a while.
Okay, so we'll start just. Okay, everyone. So we'll start the lecture. One thing, the recording feature, I am not allowing others to record. So हम करेंगे क्या? This lecture will be recorded by myself, and I'll upload in the YouTube, and I'll provide a link to everyone in the group. So I won't allow others to record locally, but I'll be recording it by my side. So it's better. We'll see it here. सो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक। तो फिजिक्स का सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट्स। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेजरमेंट। ओके, सो मेजरमेंट, बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल चैप्टर आई विल सी फिजिक्स। अभी तक जो क्लास 8 तक होता है फिजिक्स सेपरेटेड नहीं होता है, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस इटसेल्फ। तो इससे पहले आपने बहुत कम चैप्टर्स ही देखे होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं फिजिक्स के बहुत ही कम चैप्टर्स आपने देखे हैं। तो मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, आप आंसर करें कि किसको पता है फिजिक्स के विच चैप्टर्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 6th and 7th? कैन एनीवन आंसर which chapters you have studied in 6th and 7th? Sir, light. Light, very good. Motion and time. Motion and other, very good. Sir, kinematics. Electricity. Kinematics. Very good. Kinetics. Sir, heat. Heat, very good. Electricity. Heat is correct. Force. Electricity, force, Sound. Electricity. sound, very good. So I think these are the chapters you have studied. So you have heard some chapters. I'll list it out. Okay. After answering, everyone take care. After answering, अपना माइक फिर से ऑफ कर ले तो बेटर होगा, बैकग्राउंड नॉइज नहीं रहेगा कुछ भी, तो मेरा वॉइस सबको क्लियर रहेगा। ओके, सो I'll make a list. I'll make a simple list कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूजुअली सबने रीड किए हुए होंगे। नंबर 1 अगर मैं बात करूं, सो इट इज मोशन। मोशन most of you have heard. Okay, then motion में आप क्या क्या चीजें ज्यादा स्टडी करते हैं? आप वर्ड सुनते हैं डिस्टेंस, आप डिस्टेंस के बारे में सुनते हैं, वहां पर आप स्पीड के बारे में सुनते हैं, एंड सम ऑफ यू might have heard of acceleration. So some of you must have heard about acceleration. So these are the quantity we deal in chapter motion. Then some student told they studied force. So in force, what they usually study, the one thing force itself, and another thing is momentum. So momentum and force, these two things are discussed in this force. Apart from that, in force itself we discuss one more thing, pressure. That is the topic of class 8th, pressure. But maybe some of you have certain idea about pressure, but we'll discuss it here. थर्ड अगर बात करें, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला थर्ड सर करंट। सो ऑफ कोर्स करंट, ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। देन 4 आप लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया होगा, हीट। ठीक है, सो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स आपने जो बताया, जो ऑलरेडी आपने साइंस में फिजिक्स में डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे, जो इस चैप्टर में हम बात करने वाले, वो सबसे पहला टॉपिक हम पिक करेंगे मेजरमेंट्स के बारे में। देखिए मेजरमेंट्स से हमारा मतलब क्या है? हमारा सिंपल सा मतलब है कोई सी भी क्वांटिटी हो, कुछ मैटर नहीं करता कि वो कौन सी क्वांटिटी हो, विच एवर क्वांटिटी इट इज, उसको आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। एंड कैलकुलेट मीन्स मेजरमेंट। डन, कैलकुलेट मीन्स मेजरमेंट्स। तो एक स्पेसिफिकेशन होता है कि हम चीजों को कैसे मेजर करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, अगर आप देखें कि आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप किस टर्म से मेजर करते हैं? इट इज 10 सेंटीमीटर, इट इज 20 मीटर। दैट मीन्स वी यूज अ रेफरेंस to measure each quantity. So suppose we need to measure distance, so we use a reference called meter or centimeter, like these type of references. So similarly अगर आपको पता हो कि स्पीड मेजर करने के लिए आप स्पीड कैसे बताते हैं? आप बताते हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, तो आप जो बाइक्स वगैरह की स्पीड, अपने कार की स्पीड देखते हैं, वो किस यूनिट में होती है? किलोमीटर पर आवर पे। इस तरीके से कुछ यूनिट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे फोर्स।
तो फोर्स का भी अपना एक रेफरेंस होता है, क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। सो फोर्स को हम किस यूनिट में बताते हैं, न्यूटन। सेम तरीके से करंट की हम बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट ने सुना होगा करंट को कैसे हम मेजर करते हैं, एम्पियर। मैं भी कुछ यूनिट्स लिख रहा हूँ, मैं सारे यूनिट सारे रेफरेंस नहीं लिख रहा हूँ। हीट की बात करें, किसी को याद है हीट, कोई बता सकता है हीट हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, Celsius and Fahrenheit. कैलोरी calorie, okay, good. Celsius is not a unit of heat, very good, it is calorie. So जो हम calories की बात करते हैं ना, that is a sort of heat provided to our body. Done. So each quantity has a reference and has its own method of measurements. तो the very first chapter we'll discuss is measurements. अब वो references क्या है, हमने कैसे physics में decide किए references, हम वो चीज discuss करेंगे। क्लियर। सो फिजिक्स में हम सबसे पहला टर्म डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? तो बड़ी सिंपल सी बात है, द फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, व्हिच मींस व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड दे आर पॉसिबल टू मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नंबर वन, एक तो फिजिक्स अप्लाई होनी चाहिए उसमें, नंबर टू उसको हम मेजर कर सकें, उनको हम कैटेगरी में रखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और उनकी स्टडी हम करेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम सिर्फ किनकी स्टडी करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की, मतलब जहां पर फिजिक्स अप्लाई हो सकती है और हम दे आर पॉसिबल टू मेजर। मतलब अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कौन सी चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सपोज मैंने आपसे पूछा, यू हैव एन आइडिया, डन, एंड इज इट अ फिजिकल क्वांटिटी? सो ऑफ कोर्स इट इजंट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आपका जो आइडिया है वो बहुत ही रैंडम हो सकता है ना, उस जरूरी थोड़े ना कि उसमें लॉज ऑफ फिजिक्स पूरे वैलिड ही होंगे। दैट मीन्स आपका जो आइडिया है उस पे लॉज ऑफ फिजिक्स वैलिड नहीं है। एंड वन मोर थिंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर योर आइडिया। सो बाय दीज टू पैरामीटर्स वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारे थॉट जो माइंड में आते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। Clear everyone? So some examples are there for physical quantity. So everyone knows, like length. The second one is the most important part, mass, then time, speed, velocity, acceleration, area, heat. Lot of examples are there. So some of the example we also listed out: distance, acceleration, momentum, force, pressure, current, heat, these sort of examples. So all these things, they follow the physics, law of physics, and they are possible to measure. So is it clear to everyone what are the physical quantities? So those quantities which can be described by the laws of physics and they are possible to measure. And there are certain examples जो आप कुछ भी random example बोल सकते हो जो आप जानते हो, जिन्हें आपने physics में पढ़ा है। Done? Let's see. अब बात करते हैं what are the types, what are the measure types. So let's see, let's talk about the measure type, the type of physical quantities हम बात करें. So there are only two types of physical quantities. Number one, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज ये है, जब हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे थे कि एकदम बेसिक ऑफ फिजिक्स स्टार्ट कर रहे थे, तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हुई जो हमें पता चली दे आर लाइक सेल्फ सफिशिएंट, उनको डिफाइन करने के लिए कुछ सेपरेट जरूरत नहीं है। मतलब सुनिएगा, सपोज आपको स्पीड डिफाइन करना है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग the formula of speed. It is distance over time. It is distance over time. So this shows the speed depends upon distance and time. But अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि ये टाइम किस पे डिपेंड करता है, तो टाइम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। वैसे ही हम बात करें यार कि हीट एक एनर्जी है, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं, तो वो किन किन बातों पे डिपेंड करती हैं। तो फिजिक्स में हमने एक चीज देखी, देर आर सर्टेन क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस which does not depend on other quantities, but speed it depends. So speed depends on other quantities like distance and time, while distance and time are independent, they are base quantities. So to those base quantities we called them fundamental quantities because we have assumed them as fundamental. So definition क्या हो जाएगी फंडामेंटल क्वांटिटीज, which are
independent are called fundamental quantities. तो पता है बेटर बात क्या है कि there are only 7 fundamental quantities in physics. तो आपको लर्न करना इजी हो गया, आपको ज्यादा कुछ याद करना ही नहीं है, आप 7 याद करके रखो. अपार्ट फ्रॉम दीज 7 the rest of the quantities will be derived quantities. So derived quantities क्या होते हैं? Which are the physical quantities which depend upon the fundamental quantities are called derived quantities. So like here, this is speed. This will be a derived quantities because it is derived from the 2 fundamental quantities. Okay, so let's list what are the 7 fundamental quantities. तो आप लोग याद करेंगे, आपको याद होना चाहिए. These 7 everyone must remember. ये थ्रू आउट क्लास 12 तक फिक्स ही रहेंगे, आप लोग को याद रहने चाहिए कि विच आर द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन्हें हमने एज्यूम किया हुआ है. नंबर 1 लेंथ. ओके, लेंथ क्या होता है यार? लेंथ सब जानते हैं, एक टाइप का डिस्टेंस है जो हम मेजर करते हैं इन सेंटीमीटर, मीटर, बहुत सारे उसके रेफरेंस है. सेकेंड है बेटा मास. मास एवरीवन नोज, इसका रेफरेंस क्या है? केजी, ग्राम, क्विंटल, इस टाइप में टन आप बता सकते हैं. देन थर्ड है टाइम. टाइम इज वेल नोन, it is second, minute, hour, these are reference. Then it is a thermodynamic temperature. This thermodynamic doesn't mean much, the main thing is temperature. Okay, so temperature you know, जैसे आपने बताया कि डिग्री सेल्सियस, तो बेटा वो हीट का यूनिट नहीं है, वो क्या है? एक अलग ही क्वांटिटी है विच इज कॉल्ड टेम्परेचर. तो अगर आपको बॉडी टेम्परेचर हमें बताना है तो आप बॉडी टेम्परेचर बोल सकते हैं सर 37 डिग्री सेल्सियस है. सपोज वाटर बॉईल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. सपोज आइस है, उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये एक फोर्थ एज्यूम्ड क्वांटिटी है. नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट. तो आप लोग के घर पे ये जो करंट आ रही होती है वायर्स के थ्रू, ये भी एक टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी हमने एज्यूम की है. देन 6th वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. अच्छा, ये आप सब लोग के लिए बिल्कुल नई है, आपने ये वर्ड बिल्कुल नहीं सुना है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या चीज होती है? ये क्वांटिटी होती है जो बताती है कि कोई फ्लेम कितनी इंटेंस है. दैट मीन्स आप सपोज गैस बर्न करते हो, तो गैस बर्न करते हैं तो उस गैस से एक लाइट निकलती है ना, तो उस फ्लेम की जो इंटेंसिटी है, पावर है, वो बताती है ये क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो हमने स्टार्टिंग में तो इसे फायर और फ्लेम के लिए डिसाइड किया, बट जैसे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आई और हमने बल्ब और डिवाइसेस इन्वेंट किए, तो फिर इस क्वांटिटी को हम डिवाइसेस और बल्ब के लिए भी यूज करने लग गए. सो ट्यूबलाइट में डिफाइन करते हैं कि इस ट्यूबलाइट की ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है, डिफरेंट ट्यूबलाइट से कितनी लाइट आ रही है. डन. सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आई थिंक इट्स क्लियर. देन द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री. मतलब केमिस्ट्री में कैसे? जैसे हमने बात की अभी कि आपको बताना है कि यार एक बकेट वाटर है सपोज आपके पास, तो आप उसका क्या बताओगे? आप बताओगे एक बकेट वाटर मतलब इट इज नियरली लेट्स से 10 kg. सो मतलब हम क्या क्वांटिटी बताएंगे वहां पर? मास. तो अगर बकेट है तो हम क्या चीज बताएंगे वहां पर? मास. ओके, वेरी गुड वेदित. सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके पास, उनका वेट कितना है. सो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट है, इसको हम डिफाइन करते हैं मोल से. सो दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड बाय मोल. मतलब सपोज एक कंटेनर में गैस है, तो यार गैस को केजी में हम नहीं कन्वर्ट मतलब बताते हैं यूजुअली, बट जो गैस लिक्विडफाइड फॉर्म में, जैसे जो घर पे हमारे एलपीजी आती है, वो हम केजी में बताते हैं. बट रिमेनिंग अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो गैसेस को हम कैसे बताते हैं? मोल में. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हमें बताना है तो हम बताते हैं मोल में. सो आई थिंक दीज 7 क्वांटिटीज एवरीवन मस्ट रिमेंबर. आगे हम इन पे और डिस्कस करेंगे. देन बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज की. तो डेराइव मैंने बताया विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज. अच्छा, अभी एक चीज क्लियर है कि फिजिक्स में अगर मैंने बोल दिया कि दीज फंडामेंटल और 7 दीज आर फिक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिमेनिंग जितनी भी होंगी वो उन सबको हम इन 7 से, ये फंडामेंटल 7 से रिलेट कर सकते हैं. तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज पढ़ेंगे मैं आपको रिलेट करना सिखाता जाऊंगा. ओके, लेट्स सी. अब बात करते हैं थोड़ा सा डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में. तो डेराइव्ड क्वांटिटीज मैंने बताया विच आर विच डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर डेराइव्ड.
तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, प्रेशर, हीट। तो इन सब का आपको पता होना चाहिए। एरिया कैसे डिपेंड करता है, आपको पता है एरिया कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी करके। अच्छा, लेंथ को भी बेटा मतलब मीटर में ही लेंगे और विड्थ को भी मीटर में ही लेंगे, तो मतलब एरिया इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तीनों चीजें यूज करते हैं हम वॉल्यूम में, किसी भी चीज का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसका मतलब इसमें डिस्टेंस 3 बार यूज हुआ है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई हैं। सेम चीज स्पीड में हमने देखा है, स्पीड में डिस्टेंस और टाइम दोनों यूज हुए हैं। इस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया क्या कि सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स में मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज कैसे करते हैं हम। उसमें हम किस टाइप की क्वांटिटीज को फिजिक्स में देखेंगे, हम फिजिकल क्वांटिटीज को ही फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज के भी 2 टाइप है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो फंडामेंटल की तो 7 ही क्वांटिटीज है, वो हम याद रखेंगे। एंड देन डिराइव्ड क्वांटिटीज हम देख लेंगे कि विच आर रिलेटेड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनके बहुत सारे हमें फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। देन तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। सो यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द रेफरेंस यूज्ड टू मेजर इट। सो द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज, इट इज अ रेफरेंस यूज्ड टू मेजर इट। लाइक अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये जो मीटर है यहाँ पर वो क्या है, वो रेफरेंस है जो हमने यूज किया है। जैसे मास की बात करें तो क्या रेफरेंस यूज करते हैं हम, किलोग्राम, कितना केजी मास है, इस तरीके से। तो ये हो गया यूनिट। अच्छा अच्छा, एक थॉट ये है कि ये यूनिट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट होते हैं। मतलब सपोज हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। सो लेंथ की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में जो लेंथ की यूनिट्स फेमस है वो है सेंटीमीटर एंड मीटर। ये बहुत फेमस है। मतलब आप जब देखोगे कि आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर्म फिल कर रहे हो, आप गवर्नमेंट का कोई भी एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आप हमेशा देखोगे कि उसमें जो हाइट्स दी होती हैं सारी, वो इधर मीटर में और सेंटीमीटर में दी होती हैं। तो सपोज आपकी हाइट लिखी हुई है तो इस तरीके से होगी कि 140 सेंटीमीटर है। डन। अच्छा, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, लेट्स से हम यूएस की बात करते हैं, तो वहां पे लेंथ जो होती है उसके यूनिट्स होते हैं इंच, फीट, ठीक है। ओके, सो इंच एंड फीट में अभी क्या है, जब से हम लोग मतलब इंडियन कंट्री में अदर कंट्रीज का बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ है, तो उसके वजह से क्या हुआ है कि यूनिट्स मिक्स होने लग गए हैं। मींस बहुत सारे हम चीजें जो फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं उन पे जो यूनिट्स होती हैं वो इंच और फीट में रहती हैं, उसके वजह से बहुत सारे यूनिट चेंज हो गए हैं। तो सपोज इस फॉर्मेट में क्या रहेगी, जिस सपोज अभी जितने भी गैजेट्स आते हैं, आपका लैपटॉप स्क्रीन है तो उसमें लिखा होता है कि सर 15.6 इंचेस है। क्लियर। आपका टीवी एलसीडी जो भी कुछ है वो इंचेस में आता है, बट इससे पहले जब सिर्फ इंडिया में था तब हम सेंटीमीटर और मीटर ही यूज करते थे। तो ये जो मॉनिटरिंग बॉडी है तो वो है एनपीएल। एनपीएल रेगुलेट करता है कि हम अपनी कंट्रीज में किस किस टाइप के यूनिट्स को अलाउ करेंगे। डन। तो ये जो यूनिट्स को लेके हैंडलिंग है उसका काम किसका है, वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का है, वो इस चीज को हैंडल करता है। तो अब हम सारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स हम याद कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, सबके यूनिट हम देख लेते हैं एक बार। नंबर 1, लेंथ का यूनिट मीटर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद होनी चाहिए। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। देखो ये केल्विन साइंटिस्ट के नेम पर है, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या यूज होता है, डिग्री सेल्सियस, बट इंटरनेशनली क्या यूज होता है, केल्विन। डन। सो केल्विन हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट कंसिडर करते हैं। देन एम्पियर, ये किसका यूनिट है, करंट का। देन थर्ड कैंडेला, कैंडेला किसका यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, जो मैंने आपको फ्लेम और लाइट की इंटेंसिटी बताई है। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। तो these 7 units everyone must remember। लेंथ का मीटर आप लोग रिकॉल करते चले,
मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर हमने एक नई चीज यहाँ पर देखी है, डिग्री सेल्सियस हमारे कंट्री में चलता है, बट इंटरनेशनली क्या अडेप्टेड है, केल्विन। अच्छा, बट बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में अगर हम बात करें तो वहां पे एक और यूनिट चलता है जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी बहुत चलता है। अच्छा, जब बाहर की कंट्रीज से हमने थर्मोमीटर इंपोर्ट करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी कंट्रीज जिनका टेम्परेचर किस में चलता था, फ़ारेनहाइट में, हमने उस कंट्रीज से थर्मोमीटर अडेप्ट किए, लेना स्टार्ट किया। तो हमारी कंट्रीज में ऑल्दो हम डिग्री सेल्सियस में सारी चीजें देखते थे, बट जो मेडिकल यूज में आया तो जो थर्मोमीटर होता है मेडिकल यूज में वो डिग्री फ़ारेनहाइट में बताता है। तो हमारी जो हैबिट है टेम्परेचर को लेके वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब जब हम बोलते हैं ना कि सपोज किसी पर्सन का टेम्परेचर 100 हो गया है, 100 डिग्री, 100 डिग्री का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 100 फ़ारेनहाइट है। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में तो बेटा मतलब वाटर बॉयल होने लगता है ना, उसका ब्लड बॉयल थोड़े ना होने लग गया है। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, हम हीट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे चेंज करना है, बट एक चीज क्लियर रखना है कि यूनिट्स धीरे धीरे मिक्स होने लग गए हैं अभी के जनरेशन में। डन। सो वापस आते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं। सो डेराइव्ड क्वांटिटीज में जैसे स्पीड की बात करें तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट किस तरीके से निकालते हैं आप ध्यान दें। हम यूनिट निकालते हैं यहाँ पर, अगर मैं देखूं स्पीड का फॉर्मूला, यार स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा ना बिल्कुल इसी तरीके से होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। मतलब डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, मीटर। ओके, टाइम का यूनिट अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या हो गया, सेकंड। सो इसका मतलब स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड। और फिजिक्स में जो अपॉन है उसे क्या रीड करते हैं हम, पर। डन। सो हम इसे रीड करेंगे मीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट हो जाएगा, स्पीड का यूनिट हो जाएगा। सेम एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम। डन। अच्छा, स्पीड क्या था, स्पीड ऑलरेडी था मीटर पर सेकंड। अच्छा, डिवाइड बाय एक और टाइम हो गया, एक और सेकंड हो गया, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि एक्सेलरेशन का यूनिट हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये था कि हम किस तरीके से डेराइव्ड क्वांटिटीज के हम यूनिट देख सकते हैं। मैंने बताया कि फिजिक्स में ऑलरेडी 150 प्लस क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में कितनी क्वांटिटीज हैं, 150 प्लस, जिसमें से 7 फंडामेंटल है, बाकी सारी क्या है, डेराइव्ड। तो इसलिए सबको जैसे जो अभी सारे नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे हम नए नए नेम्स देखते जाएंगे रिगार्डिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज। चले, तो अब हम बात करते हैं कि यूनिट्स का एक सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज सब लोग रैंडमली यूनिट यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो वी फॉलो अ सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब सपोज एग्जांपल देखेंगे, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोग को एक एग्जांपल, सब ध्यान देंगे। लेट्स से फोर्स का फॉर्मूला हम देखते हैं, काफी लोग को पता होगा बट लेट्स से कुछ लोग को अगर नहीं पता है, तो इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। सो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए, सपोज मास को आपने रख दिया किसमें, ग्राम में, लेट्स से 50 ग्राम, 100 ग्राम, कितना भी ग्राम है, बट आपने जो एक्सेलरेशन रखा है वो तो ये वाला रखा है, ये जो हमने ऊपर जस्ट अभी देखा था, क्या, दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा फोर्स का फाइनल यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये गलत है, ये तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या, हम एक यूनिट सिस्टम डिफाइन करेंगे और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम हमेशा फाइनल यूनिट का आंसर देंगे, तब हम उसको फाइनल करेक्ट आंसर मानेंगे। क्लियर एवरीवन। तो मतलब हमें अब एक और नई चीज देखनी है आज, वो क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डन। सो देयर आर ओनली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सारे कंट्रीज इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो सिस्टम फेमस है दैट इज फॉर थर्ड वन, MKS। तो विल डिसाइड वन बाय वन, विल सी the first one is CGS system. So the number one is, first one is CGS system, second is called FPS system, third is called MKS system and fourth is called SI system. अब इनके नेम में ही क्लियर है क्या,
ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको हम पहले टारगेट करते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? लेंथ। तो सबको क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी थी लेंथ, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी थी मास, एंड थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी थी टाइम। तो इन तीनों को ही रेफरेंस लेके सिस्टम बना दिया गया। क्या? सीजीएस सिस्टम का मतलब है कि जो लेंथ है आप उसका यूनिट क्या यूज करें? सी मीन्स सेंटीमीटर। तो आप लेंथ का क्या यूनिट यूज करें? सेंटीमीटर यूज करें। फिर जी मतलब ग्राम, मास का क्या यूनिट यूज करें? आप ग्राम यूज करें। और एस मतलब सेकंड, टाइम का क्या यूनिट यूज करें? सेकंड। तो वो सिस्टम बन जाएगा सीजीएस सिस्टम। मतलब क्या? जब ग्राम यूज करोगे तब सेंटीमीटर यूज करोगे और सेकंड यूज करोगे। तो इसका मतलब हमने इसको सीजीएस में लिखा क्या? नहीं, गलत। हमने इसको तो ग्राम लिख दिया, हमने इसको तो ग्राम लिख दिया, बट ये मीटर लिख दिया ना। जबकि सीजीएस सिस्टम कहता है, सीजीएस सिस्टम कहता है कि सेंटीमीटर आना चाहिए किसके साथ? ग्राम के साथ। क्लियर? तो अगर आप ये लिखते दिस ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट इज करेक्ट। ये एक सही पैटर्न होता। क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट हमने देखा सीजीएस सिस्टम, जिसमें हम लेंथ को सी विच मीन सेंटीमीटर में, मास को जी मतलब ग्राम में, एंड टाइम को एस मतलब सेकंड में रखेंगे। सेकंड सिस्टम ये एफपीएस सिस्टम, ये यूएस और इंग्लैंड में ज्यादा फॉलो होता है। एफपीएस की बात करें तो एफपीएस का मतलब क्या है? लेंथ का जो यूनिट है वो एफ है। एफ का मतलब क्या है? फुट। तो यहाँ पर देखिए लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है? फुट। पी क्या है? मास का यूनिट। मास का यूनिट है पाउंड। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप जो एक ये WWF के फाइटिंग्स वालों का कार्ड देखते हैं, फाइटर्स का कार्ड देखते हैं, तो उसमें आप हमेशा देखेंगे कि उसकी हाइट फीट में और वेट पाउंड में रहता है। मतलब जब उनका आप वेट सुनोगे तो जो फाइटर्स हैं उनका वेट आप हमेशा इस तरीके से देखोगे कि इट इज 250 पाउंड्स। पाउंड्स को LB लिखते हैं, स्मॉल LB। तो आप हमेशा उनका जो यूनिट देखेंगे वो ऐसे ही दिखेंगे, 250 LB, 200 LB। सो ये पाउंड है। एक पाउंड जो होता है वो नियरली, एग्जैक्टली नहीं, नियरली हाफ केजी जितना होता है। एक्चुअली लेस होता है, एक्चुअली 455 ग्राम के आसपास होता है, बट लेट्स से इट इज वेरी लेस, इट इज अ बिट लेस देन हाफ केजी। मतलब ये जो पर्सन 100 LB लिखा हुआ है ना, ये 100 केजी से भी लेस है। क्लियर? सो ऐसा नहीं है कि वो 200 केजी के होते हैं वहां, ऐसा नहीं है, वो 200 पाउंड के होते हैं, एंड पाउंड इज नियरली हाफ ऑफ द केजी। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो एफपीएस सिस्टम क्या हो गया? फुट, पाउंड एंड टाइम का यूनिट सेम है तीनों ही सिस्टम में, सेकंड। अब बात करते हैं इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम क्या है कि एम मतलब मीटर, लेंथ का यूनिट यूज करिए आप मीटर, देन मास का यूनिट किलोग्राम, एंड देन टाइम का यूनिट सेकेंड। इसका मतलब अगर आपको फोर्स को सॉल्व करना है ना, तो फर्स्ट मास का यूनिट ग्राम की जगह क्या लिखिए? केजी। देन आप यूज कर सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपका एक यूनिट बन जाता है फोर्स का। फिर बात करते हैं एसआई सिस्टम। सो इंटरनेशनल सिस्टम क्या है कि जैसे ही बाद में कंट्रीज का ऐसे कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हुई, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की मीटिंग से स्टार्ट होना शुरू हुई रिगार्डिंग द साइंस, तो पॉइंट ये हुआ कि सब लोगों का यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर एनालाइज करने में प्रॉब्लम होने लग गई। तो सबने एक फिक्स यूनिट सिस्टम बनाया जिसको बोला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्लियर? एसआई सिस्टम। तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसे नेम्स रखे गए यूनिट्स के विच आर फिक्स्ड। लाइक फोर्स का यूनिट हमने लिखा न्यूटन, फोर्स का यूनिट जो एज्यूम किया गया वो क्या था? न्यूटन। सो लाइकवाइज हमने बहुत सारे यूनिट्स डिफाइन करे विच आर इंटरनेशनल। एंड वन थिंग, MKS यूनिट सिस्टम इज क्वाइट सिमिलर टू इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स के बहुत सारे यूनिट आ गए, आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ये चीजें पूछ सकता है फोर्स के, व्हाट आर सम डिफरेंट यूनिट ऑफ फोर्स। तो नंबर 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नंबर 2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नंबर 3 न्यूटन, यू ऑलरेडी नो। सो इस तरीके से हम फोर्स के यूनिट्स डिफाइन करते हैं। क्लियर?
तो आई गेस मुझे लगता है स्टूडेंट्स को क्लियर होगा आज कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे देखते हैं। क्लियर? सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये 4 सिस्टम ही है, तो आपको यही फिक्स रखना है। तो हम एक बार फिर से रिव्यू करते हैं कि हमने अभी क्या क्या देख लिया। तो हमने डिस्कस किया है फिजिकल क्वांटिटीज को लेके, फिर उसमें हमने डिस्कस किया है फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज होती हैं, फिर हमने उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स देखे हैं जिनको हमने फंडामेंटल यूनिट बोला। फिर हमने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी हैं लाइक स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ऐसे कुछ कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी हैं। फिर हमने बात की सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। फिर अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि यूनिट्स को लिखते कैसे हैं। कुछ स्टूडेंट्स यूनिट्स को बहुत ही रैंडमली लिखते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि यूनिट किस तरीके से लिखना है। नंबर 1, जब भी यूनिट लिख रहे हैं तो सपोज वैल्यू एक प्लूरल वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू है, तो याद रखना है कि आपको यूनिट का प्लूरल नहीं बना देना। मतलब जैसे 1 kg है लेकिन 10 है तो आपने लिख दिया 10 kgs। तो मे बी आप बोलने में ओरली आप ऐसा बोल सकते हो कि 10 kgs, बट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग वो बिल्कुल गलत है। kgs कभी भी नहीं लिखते। नंबर चाहे कितना बड़ा हो, यूनिट में ऐसे खुद से एस नहीं लगा देते, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिख दिया kgs तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब होता है kg इंटू एस, दैट मीन्स मास इंटू टाइम। एस किसका यूनिट है? सेकंड का। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये गलत तरीका है। व्हाट इज करेक्ट वन? जस्ट kg। नंबर 2, जैसे मैंने बताया सेंटीमीटर। सो अगर मैंने आपको बताया कि यार सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर, तो आपने सोचा कि यार सेंटीमीटर तो फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है? सी डॉट एम डॉट, इस तरीके से। तो ऐसे भी नहीं लिखते हैं, याद रखना है। यूनिट में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे डॉट लगा के रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यूनिट्स में डॉट हम यूज करते हैं 2 डिफरेंट यूनिट्स के मल्टीप्लाई के लिए। तो अगर आप ऐसे ही कर दोगे तो कंफ्यूजन होगी कि सी किसी चीज और का यूनिट है और एम किसी और का यूनिट है, ऐसा लगने लगेगा। तो याद रखना है, ऐसा 15 सेंटीमीटर इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं। हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं? सिर्फ 15 सेंटीमीटर, लाइक दिस। डन? ओके। थर्ड प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमें यूनिट लिखना है तो साइंटिस्ट का नेम लिख रहे हैं हम या फिर हम यूनिट लिख रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन रहती है। तो जब हम साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं तो हम लेटर कैपिटल बनाते हैं ना, फर्स्ट लेटर। तो इसलिए जब हम यूनिट लिखते हैं तो हम यूनिट में कभी कैपिटल एन नहीं बनाते हैं, यूनिट में कैपिटल एन नहीं बनाते। अगर हमें यूनिट लिखना है तो हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं, जिससे क्लियर रहे कि ये यूनिट है साइंटिस्ट का, मतलब सेपरेट नेम नहीं लिखा हुआ है। तो 2 न्यूटन अगर हमें लिखना है तो 2 न्यूटन में फिर एन कैपिटल नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 जूल, तो जे कैपिटल नहीं बनाएंगे। लिखा हुआ है 5 मीटर्स, तो एम कैपिटल नहीं बनाएंगे। सिंपल लिखेंगे 4 जूल लाइक दिस, 5 मीटर्स लाइक दिस। लास्ट, तो कई बार हमें साइंटिस्ट का पूरा नाम नहीं लिखना, तो अगर आप पूरा नाम नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ एक सिंबल यूज कर रहे हो, तो आप इस न्यूटन को सिर्फ कैपिटल एन से यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको पूरा नेम लिखना है तो कैपिटल एन लिखने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स से हम सिर्फ साइंटिस्ट का क्या यूज कर रहे हैं? फर्स्ट नेम लेटर यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर फिर हम कैपिटल रख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें 4 न्यूटन लिखना है तो हमने सिर्फ लिख दिया 4 कैपिटल एन, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हो गया 4 न्यूटन। देन फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, सपोज आपने लिखा हुआ है 5 कैपिटल जे, तो इसका मतलब हो जाता है 5 जूल। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है लिखने का, वो चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें लिखना है। क्लियर एवरीवन? तो ये थोड़ा सा आइडिया क्लियर होना चाहिए कि यूनिट सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरीके से हम यूनिट्स को लिख सकते हैं। अभी किसी को इसमें डाउट है तो बताए, एक बार रीड कर लें सब कि व्हाट आर द 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और हम यूनिट्स को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दे आर स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम यूनिट्स कैसे यूज करेंगे। देखें एक बार सब लोग, किसी को डाउट हो रहा है तो पूछेंगे। Okay, so to ask a question, you can unmute yourself, then ask a question, then mute again. So if someone wants to ask, they can unmute themselves, ask a question.
So I think it's clear what are the system of units and what are its pattern, how we write those system of units. One thing, ये सारे जो स्टेटमेंट है, ये सारी डिटेल्स है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, विच मीन्स आपको अभी सेल्फ का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. इट इज एडवाइजेबल कि आप क्लास के ड्यूरेशन पे आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लास में फोकस करें. अगर मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूं तो फिर आप एक बार उसको देखें. न्यूमेरिकल एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, आपको बाकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. ये नोट्स हम ग्रुप पे डाल देते हैं, क्लियर. और इसका वीडियो लेक्चर भी हम डालेंगे. हाँ, किसी को अगर एक शॉर्ट नोट्स बनाना है स्टडी के लिए तो लेक्चर होने के बाद ये जो वीडियो लिंक हम डालेंगे लेक्चर की, आप उसे रिव्यू कर सकते हो. तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्लियर, और आपका एक शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा. तो दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू राइट, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप लोग क्या करें, दोबारा इस लेक्चर को देखेंगे तो वो चीजें रिवाइज भी हो जाएंगे और एक शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो. चले, तो हम थोड़ा सा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पे बात करते हैं, और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सुन रखा होगा ऑलरेडी. हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. क्या हम डिस्कस करने वाले, प्रीफिक्सेस ऑफ एसआई यूनिट्स. प्रीफिक्सेस ऑफ एसआई यूनिट्स मतलब ये जो एसआई यूनिट हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, फंडामेंटल यूनिट ले लेते हैं, लेट से बात करते हैं. डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर. सो डिस्टेंस का जो यूनिट था मीटर, ये हो गया एसआई यूनिट, क्लियर. मीटर के बाद हमने बात की लेट से मास का यूनिट, तो मास का यूनिट हो गया ग्राम, मास का यूनिट हो गया ग्राम. फिर हमने बात की टाइम का यूनिट, तो वो हो गया लेट से सेकेंड, तो वो हो गया सेकेंड. सो दीज आर लाइक रेफरेंस, बट इन नेम्स के आगे हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं. और प्रीफिक्स यूज करने का पर्पस क्या है कि इनकी वैल्यूज बहुत बदल जाती है. मतलब सपोज आप सुनेंगे, ये चीज काफी आपने सुना होगा, सपोज आप बहुत बड़ा वेट देखें, कहीं मशीनरीज और ऑब्जेक्ट्स चल रहा है, तो आप, या लाइट का प्रोडक्शन है, तो आप ये जरूर सुनेंगे. सपोज एक पावर प्लांट है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो पावर प्लांट का जब प्रोडक्शन सुनेंगे तो आप हमेशा सुनेंगे कि लाइक 40 मेगाटन, ठीक है, या 40 मेगावाट का पावर प्लांट है. तो ये जो W है ये उसका यूनिट है, watt is its unit, but this initial word, the prefix is called mega. So इसका मतलब होता है मेगावाट. So ये जो prefixes हैं इनकी कुछ वर्थ होती है, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं. तो कई बार हमें चीजें बहुत ही छोटी और बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है, तो अगर हम इसे लिखेंगे रियल में, तो पता है रियल में मेगा का मतलब क्या होता है. मेगा का मतलब होता है 1 मिलियन, which is 16 zeros. तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इतने जीरोस तो हम नहीं लिख पाएंगे ना, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं. तो सब लोग को क्लियर होने चाहिए कि प्रीफिक्स हम क्यों यूज करते हैं, कि यूनिट अगर हमारा बहुत बड़ा या छोटा आ रहा है तो प्रीफिक्स के थ्रू वो मैनेज हो जाता है. मतलब समझे, सपोज हम बात करते हैं, हमें लिखना है 20 किलोमीटर, सुनेंगे 20 किलोमीटर, तो ये जो के है, अगर हम बात करें ये के, तो ये क्या है, ये प्रीफिक्स है. मीटर इज अवर रेफरेंस, दिस मीटर इज अवर रेफरेंस, बट दिस के इज अवर प्रीफिक्स. क्लियर एवरीवन. सो दिस किलोमीटर इज प्रीफिक्स. तो वैसे हम देखेंगे कि के का मतलब क्या होता है, तो ये प्रीफिक्स टेबल है. यहाँ पर आप सर्च करें कि किलो कहाँ पर लिखा है, तो देखिए इस टेबल पे लिखा हुआ है ये किलो. किलो का मतलब होता है 10 to the power 3. तो बेटा इसका मतलब होगा 20 into 10 to the power 3 का मतलब कितना है, 10 to the power 3. किसी भी चीज का पावर मतलब उतने जीरोस ऐड करेंगे. सो 20,000 हो गया इसका मतलब. तो देख रहे हैं ना, 20,000 लिखना थोड़ा सा टफ है, बट ये लिखना बहुत ही इजी था. मतलब सपोज आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, सो बहुत टाइम ऐसा होता है सोशल मीडिया पे कि व्यूज हैं. सपोज किसी चीज में आप व्यूज की बात करते हैं, तो व्यूज हमेशा ऐसा लिखा होता है, लेट्स से 2.4 M. आप देखेंगे यूट्यूब पे ऐसे व्यूज लिखे होते हैं 2.4 M. तो इसका मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मिलियन. M का मतलब क्या है, ये एक प्रीफिक्स है, मिलियन मतलब 6 zeros.
तो इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है 2.4 इंटू 1 के आगे कितने जीरोस, 6 जीरोस। सो टोटल अगर हम देखें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गए 5। तो उसका मतलब है इतने व्यूज हैं उनके पास। तो अब समझ लो ना, ये बड़ा नंबर लिखा रहेगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, दैट्स व्हाई वी यूज दीज प्रीफिक्स। तो मैं ये प्रीफिक्स के नेम कॉल आउट कर रहा हूँ और उनके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी ये सारे प्रीफिक्स याद करो जिससे हम इनको अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो प्रीफिक्स टेबल में याद रखना है, प्रीफिक्स टेबल में ये हायर ऑर्डर टेबल है और ये लोअर ऑर्डर टेबल है। मतलब ये बड़े प्रीफिक्स हैं और ये छोटे प्रीफिक्स हैं। मतलब समझेंगे क्या कि लेट्स से रेफरेंस की बात करेंगे। सो जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस, सो रेफरेंस को हम कंसीडर करेंगे क्या, 10 टू दी पावर 0। अच्छा, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 लगा देना तो वो 0 नहीं हो जाती, वो हो जाती है 1। ये हमें मैथमेटिक्स ध्यान देना है। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 रखी है दैट मीन्स वो हो जाती है 1। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि लेट्स से 50 टू दी पावर 0, तो बड़ा 0 नहीं कर देना इसे। किसी भी नंबर के पावर 50 टू द पावर 0 क्या बनेगा, 1। सपोज मैंने लिखा 3x, कुछ रैंडम सा फिगर है, टू दी पावर 0 मतलब 1। सो किसी भी चीज के पावर 0 का मतलब होता है 1। तो हमने 10 टू दी पावर 0 को बोला है रेफरेंस, मतलब हमारा रेफरेंस क्या है, 1। अब देखेंगे पर दिस प्रीफिक्स, अब बहुत सारे प्रीफिक्स आपने सुने होंगे, जैसे डेका का मतलब होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन है DA, 10 टू दी पावर 1। हेक्टो का मतलब होगा 10 टू दी पावर 2। किलो का मतलब होगा 10 टू दी पावर 3। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप जो बहुत ज्यादा सुनेंगे वो होगा किलो। मेगा का मतलब होता है 10 टू दी पावर 6। गीगा का मतलब होता है 10 टू दी पावर 9। ये 3 बहुत फेमस होते हैं। उसके बाद होता है टेरा, पेटा, एक्सा। तो यहां तक हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो, अगर आपको याद हो, तो आप इस तरीके के वर्ड सुनते हैं कि आपके मोबाइल की जो रैम है वो क्या है, 4 GB है। तो दैट कैपिटल जी इज गीगा। आपके लैपटॉप में कितनी मेमोरी है, आप सुनेंगे 1 TB। सो दैट कैपिटल टी इज टेराबाइट। तो मतलब इतनी ज्यादा मेमोरी है 10 टू द पावर 12। तो अभी हम इनका इंटर रिलेशन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बट दीज 3 आर द मेजर वन, तो ये आपको याद ही होने चाहिए। फिर स्मॉलर वन देख लेते हैं। तो स्मॉलर वन में डेसी मतलब 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली 10 टू द पावर -6, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9। लाइकवाइज इस तरीके से लोअर ऑर्डर भी होते हैं। तो पहले आप एक 2 मिनट का टाइम ले और सारे लोग ये प्रीफिक्सेस विद दियर मल्टीप्लायर याद कर ले। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, सारे लोग ये प्रीफिक्सेस विद मल्टीप्लायर याद होने चाहिए। मैं भी पूछूंगा सबसे। आपको मल्टीप्लायर प्रॉपर याद रखना है। 10 टू द पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब स्मॉलर ऑर्डर, पॉजिटिव मतलब हायर ऑर्डर। सबको ये पता है ना, 1 मिनट रुके सब। सबको पावर सॉल्विंग पता है ना। अगर पावर कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब सपोज हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 10 टू द पावर 3, तो पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरो। 10 टू द पावर -3 का मतलब है इट इज 1 डिवाइडेड बाई this power. So if there is negative, that means it is 1 divided by that power 1000। और अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 1000 देखें तो आप उसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं 0.001। तो ये एक मेथड है नेगेटिव पावर को लिखने का। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे, सब लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि पावर्स का यूज क्या है। सपोज मैंने लिखा है 4.1 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1000। मतलब कितने जीरोस, 3 जीरोस। मतलब 4 पॉइंट है, 1 जीरो लगाओगे तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या बन जाएगा, 41। एक और 0 लगाओगे तो 0 आ जाएगा, एक और 0 लगाओगे तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स 3 जीरोस मीन्स 3 डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट होगा और ये बन गया। सेम हैपेंस, सपोज मैंने लिखा है 23.4 इंटू 10 टू द पावर -3। So the negative means this decimal place shifts towards left. So ये याद रखना है, for positive this decimal shifts right, but for negative this decimal shifts left.
तो राइट साइड अगर शिफ्ट होता है तो अभी डेसिमल लास्ट में पहुंच गया, ये इस नंबर को हायर ऑर्डर बना देता है, और ये डेसिमल इसको लोअर ऑर्डर बना देता है। मतलब एक प्लेस, दो प्लेस और तीन प्लेस, मतलब एक और जीरो लाना पड़ेगा। सो द वैल्यू विल बिकम 0.0, एक प्लेस, 2, 3, दीज आर थ्री प्लेसेस, 4 तो वहां पर था। तो दिस आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव शिफ्टिंग। तो किसी को इस सॉल्विंग में डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट हो इस सॉल्विंग में बताएं। किसी को अगर ये सॉल्विंग में डाउट है, हाउ वी सॉल्व द पावर्स? ओके, then start memorizing these prefixes, everyone. At least you must be familiar with the highlighted one. जो मैंने इधर 3 और ये 4 highlighted लिख दिए हैं, you must be at least familiar with these highlighted one. So everyone recall these values in your minds. Now don't see the screen, recall all these values in your mind with the sequence. Everyone notice the pattern. It will be helpful for your further classes. Means these prefixes will be used up to class 12th. So I think it should be clear properly. Okay, so is it clear by now? I'll change the screen and I'll start asking. So let's see, I'll ask to everyone. Okay, I'll call up by names. So first, Dhruv, you answer. What is the worth of giga? 10 raised to 9. Okay, very good. Giga. How we represent giga? What is the symbol for giga? A capital G. Very good. So it's capital G represented by 10 to the power 9. Very good. Next, Sangeeta. संगीता आप आंसर करें. माइक्रो, व्हाट इज द वर्थ ऑफ माइक्रो? संगीता. ओके, नेक्स्ट वन वेदित. यस यस, आप आंसर करें. माइक्रो मींस द वर्थ ऑफ माइक्रो 10 power minus 6. Very good, very good. 10 power minus 6. And do you know how we symbolize micro? Do you know? Yes, Yes, what it is?
U. U. Okay, very good. So that is a stylish type of U. It is not a simple U. You see, micro में ऐसा simple U use नहीं करते हैं. We use a little stylish U. So this stylish U is called mu. So this is U and this U is called mu. MHU, mu. Done. So for micro we represent it as mu. Next. Okay. So next, Varda, आप बताएं. Yes. How we represent nano? Nano. Sir, 10 minus 9. Very good, very good. 10 minus 9. And the symbol? N. Small n. Yes, So small for n. usual letters we use small. Very good. तेजसी, आप आंसर करें. How we represent mega? तेजसी. Yes, sir. Yeah, आप आंसर करें. How we represent mega? 10 raised to 6. Yeah, very good. It is 10:6. And the symbol? M. Capital M. Capital M. And for kilo, can you also tell for kilo? 10 raised to plus 3. Very good. 10⁻+3. And representation symbol? Capital K. It's not capital K. I guess it's small k. But it for kilo it doesn't matter. We can use small k. Okay. So आपको ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ. For kilo we can use small k. Done. Okay. Let's see. अब what are their uses? वो हमें देखना है. Clear? इनका uses क्या है वो देखें. So मैं एक लाइन आपको बताएं रहा हूँ कि इनका यूज क्या है वो समझना है आपको. तो इनका यूज है कि when you are writing one SI unit with prefix, इसका मतलब होता है you can use the prefix multiplier with the SI unit. इसका मतलब क्या है कि you can use prefix with the SI multiplier. It means suppose so what it means is suppose you have given 1 megawatt. Clear? So this M is a prefix. So अगर आपको सिर्फ watt लिखना है, सिर्फ watt लिखना है, तो क्या कर सकते हैं? You can use the prefix for this mega. So prefix for mega is 10 to the power 6. So 1 megawatt will become 10 to the power 6 watt. Clear? जैसे मैंने views बताए थे, suppose लिखा हुआ है कहीं पे 2.3 K. ये views हैं. तो 2.3 K का मतलब है K का प्रीफिक्स क्या है? 1000. सो 2.3 इंटू K की जगह आप क्या लिख सकते हो? 10 to the power 3. सो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या बन जाएगा? 2300. सो दिस मच ऑफ व्यूज दैट पर्सन हैज. सो ये पैटर्न है कि अगर आपको कभी भी उसका यूनिट कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो. लाइक इट इज रिटन सपोज 1.3 km, स्मॉल के m. तो इसका मतलब क्या होगा? दिस स्मॉल के इज प्रीफिक्स. सो अगर आपको स्मॉल के यूज करना है तो आप इसका वर्थ देख लो. सो द 1.3 दिस वैल्यू विल रिमेन. के का वर्थ कितना है? 10 to the power 3 एंड देन इट इज मीटर. सो 1.3 और इंटू 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1300 मीटर. तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है जब आप आगे बड़े हो जाते हैं. तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम करता है कि चीजों को कैसे कन्वर्ट करना है. सो बाय दिस लॉजिक आप बहुत ही इजीली फिल्टर कर सकते हो सारी चीजों को. मतलब कैसे फिल्टर कर सकते हैं फिर से देख लेते हैं. सपोज मैंने लिखा हुआ है 2.4 mm. सपोज ये लिखा है, लेट्स से 12.4 लिखा हुआ है. 12.4 mm. तो इसे हमें चेंज करना है किसमें? मीटर में चेंज करना है. सो आपको क्लियर होगा कि दिस फर्स्ट m इज अ प्रीफिक्स. और ये किस चीज का प्रीफिक्स है? अगर हम बात करें तो ये स्मॉल m है ना, ये प्रीफिक्स है मिली का. मिली. और मिली का वर्थ होता है 10 to the power -3. तो आप लोग को अगर ये याद है कि ये मिली है 10 to the power -3, तो हम इसे अब लिख सकते हैं क्या? 12
0.4 into 10 to the power minus 3. ओके, बट समटाइम्स इन एग्जाम आपको मे बी ये इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिले, तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर माइनस 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम वापस लॉजिक पे आते हैं और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पावर्स का लॉजिक क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर से यहाँ पर लॉजिक नोटिस करें कि हाउ डू वी सॉल्व दीज पावर्स। सब लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, सब लोग यहाँ पर ध्यान दें कि when we multiply with the positive powers, so when we multiply with positive powers, this point shifts rightward, right side। और सोचना है यार, देखो कैसे फील करना है, कैसे, ये इतना ज्यादा रटना नहीं है कि राइट साइड शिफ्ट होता है। फील कर लेना है कि 10 टू द पावर 3 प्लस मतलब होता है बेटा हायर नंबर, माइनस मतलब लोअर नंबर। तो बेटा हायर नंबर तो तब बनेगा ना जब आगे जीरोस बढ़ेंगे। सो 4.1 इंटू हायर नंबर लाना है तो जीरोस आपको आगे की तरफ बढ़ाने पड़ेंगे राइट साइड। लेकिन लोअर नंबर अगर लेके आना है, 23 को छोटा करते जाना है, और तो मतलब पॉइंट को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। पॉइंट अभी यहाँ पर है, कितने डिजिट, पावर -3 है, मतलब 3 डिजिट शिफ्ट करना है। तो एक डिजिट हुआ 3, दूसरा डिजिट हुआ 2, तीसरा डिजिट नहीं है तो 0 एज्यूम कर लेंगे। सो क्या आ जाएगा 0.023। दीज आर 3 डिजिट्स जो हमने शिफ्ट की है। सो ये शिफ्टिंग सबको क्लियर होनी चाहिए। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। नहीं पक्का, मैं मूव कर रहा हूं। सो वापस अपने सिनेरियो में आते हैं कि हमें पूछा हुआ है 12.4 mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने देखा 12.4 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हुआ 12.4 इंटू -3। 10 टू द पावर -3 का मतलब है शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ जीरो, सो इट विल बिकम 0.0124। कितने डिजिट शिफ्ट किए, 3। सो एक शिफ्ट हुआ 2, एक हुआ 1, आगे डिजिट नहीं था, वी एज्यूम्ड इट 0। So these are the 3 digits by which the point has shifted। तो देखो ये नंबर बहुत छोटा हो गया ना, 12 से ये नंबर क्या बन गया, 0.0124 हो गया बिकॉज ऑफ दिस माइनस। सो मुझे लगता है ये आइडिया भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या वैल्यू आएगी। तो मैं देखता हूँ, मैं कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा, आप या फिर आप चैट बॉक्स में आंसर करें। आप पब्लिक करिए, आंसर ना करें, चैट बॉक्स में आंसर करें। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आपको उसका कन्वर्जन बताना है। Clear everyone? So let's see. The values are: number 1, it is 37.5 centimeter. You need to change it into meter. Number 2, 3.4 mu m. You need to change it into meter. Third, 45 ms. You need to change it into s. So answer everyone. First answer the first part. Answer it in the chat box. Okay, so Tanuj, it's not correct. The first one, it's incorrect. Recheck again. Sir, हाँ बोले। sir, I have to type the answer. Yeah, okay. I'll see. Just wait. हाँ.
Okay, the first one, it is good. सर सेकंड का यूनिट क्या है? Second, it is mu amna micrometer. Recently I showed na, I wrote it here. This letter is called mu. This mu belongs to micro. This mu is a stylish type of u. It belongs to micro. The first one, very good. Dhruv, it's correct. Very good. सर सर Sir, I have sent the third answer in the chat box. सर सर Sir, I have sent second answer. सर I have sent first and third with second. Sir, I have sent second and third. Sir, I have sent first and sent third. all.
I can't hear your voice. Me too. Me too. Okay. Now is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, good. I'll speak again. So listen everyone. So how we decide these power, negative power? So one thing is clear, when we multiply with 10 to the power something, that is the value of our prefixes. So the negative value, impact of negative value makes the value smaller, and the impact of positive value make the value larger. अब डिसाइड कैसे करना है स्मॉलर और लार्जर? तो मैंने लिखा हुआ है कि सपोज 23.7 था, अगर आपको इसे स्मॉलर करना है, नंबर नहीं बदलना, जस्ट आपको पॉइंट शिफ्टिंग करनी है। तो अगर आपको स्मॉल करना है तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। देखो 23 से क्या बन गया, 2.3 बन गया। एक और पॉइंट शिफ्ट कर दो तो 22.3 से बन गया 0.23। एक और शिफ्ट कर दो तो 0.023। So you must remember that negative power makes it smaller, and for a smaller value you need to shift the point left side. Now for the larger values, the positive power here makes the value larger, which means अगर 23.7 है तो शिफ्ट कर दो पॉइंट, तो क्या बन गया 237। और लार्ज करना है तो यहाँ पर और जीरो ऐड करते जाओ, दैट मीन्स अभी पॉइंट है एंड पे, दिस इज 237.0। एक और शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया 2370.0। आगे के पॉइंट का कुछ मतलब नहीं है, सो लाइकवाइज हम जीरो बढ़ाते जाएंगे। तो ये एक पैटर्न है हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पावर्स, 10 टू द पावर। तो ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट। टू राइट एनी वैल्यू, सपोज लिखा हुआ है 237000, तो इसको साइंटिफिक लिखने का तरीका होगा, देयर आर 2 and 3, 5 zeros are there, so I can write it like 2.37 into 10 to the power 5. Clear? Because by multiplying positive power this number will become higher. So as this number is higher, उसे हम अगर small बनाएंगे, so we will take the positive powers. So इस तरीके से हम पावर डिसाइड करते हैं। तो वापस से मैं अपने क्वेश्चन में आता हूँ और फिर पावर्स का सॉल्विंग करते हैं। तो बार बार हम देखेंगे कि पावर्स को कैसे हैंडल करना है। सो बिफोर हैंडलिंग द पावर्स एवरीवन मस्ट रिमेंबर कि वो प्रीफिक्स की वर्थ कितनी है। क्लियर? सो लेट्स सी प्रीफिक्स का वर्थ। सो पहले हमने देखा सेंटीमीटर सी, तो सेंटीमीटर का वर्थ क्या होता है 10 टू द पावर -2। सो सेंटीमीटर का वर्थ है 10 टू द पावर -2, तो हमने लिखा 37.5 इंटू 10 पावर -2। अब -2 मतलब इट विल मेक द नंबर स्मॉलर। स्मॉलर मतलब पॉइंट को 37 से और कम करते जाना है, कितने डिजिट, 1 2 डिजिट। So this number will become 0.375 meter. So this was the correct answer. Let's see for the second one. This mu, I have already shown, this mu belongs to micro. This is a representation for micro. It is a stylish type of mu, u. So this mu, let's see, इसका वर्थ कितना होता है, इसका वर्थ होता है 10 to the power -6. So we'll write this 213.4 into 10 to the power -6. क्लियर? सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसे स्मॉलर करना है बट कितने जीरोस, 6 जीरोस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.000213 हमने कितने डिजिट शिफ्ट कर दिए, these 6 आर द डिजिट शिफ्टेड। सो ये हो गया इतना मीटर। अब बात करते हैं दिस सेकेंड वन, दिस इज मिली सेकेंड। So everyone must remember this small m is not meter, this is a prefix of s. So इस prefix का मतलब क्या है, मिली। इस prefix का मतलब है मिली, और मिली का मतलब आपको पता होना चाहिए, it is 10 to the power -3. So क्या हो गया, ये हो गया 45 into 10 to the power -3.
सेकेंड। अब हमने बताया कि 3 है, मतलब क्या करेंगे, छोटा करना है इसे। सो 3 स्टेप छोटा करना है, तो 1 पॉइंट पहले शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा ये 4.5, एक और। सो ओवरऑल कितने 3 जीरो शिफ्ट करेंगे, सो फाइनली इट विल लुक लाइक 0.045 second, small s. So this is how we change any prefix to its reference value by using the exact power. So मुझे लगता है अभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि हाउ टू यूज दिस प्रीफिक्स एंड इनको वापस रेफरेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये था स्टेप नंबर 1 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्टेप नंबर 1 कि एसआई यूनिट के प्रीफिक्स को हमने वापस से एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। अब नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या, ये लाइन हम देखेंगे। क्या अभी हमें क्या करना है, हमें गीगा से डायरेक्टली रेफरेंस में जाना है, बट हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना। कई बार आपसे पूछेगा कि आपको गीगा से सिर्फ किलो तक जाना है, या फिर नैनो से आपको माइक्रो तक जाना है, या फिर सेंटी से आपको किस में जाना है, माइक्रो तक जाना है। दैट मीन्स जब आपको विद इन द प्रीफिक्सेस चेंज करना है, व्हिच मीन्स क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस समय डेटा की बहुत ज्यादा बाइट होती है, बातें होती हैं, तो डेटा की हम बात करते हैं। डेटा का यूनिट क्या होता है, बाइट्स। कंप्यूटर डेटा का फॉर्मेट होता है बाइट्स। सो बाइट्स के बारे में अगर हम बात करें, सो सपोज लिखा हुआ है 1 MB, कैपिटल MB, तो इसमें कितने बाइट्स होंगे, तो मैंने बताया दिस M इज प्रीफिक्स, तो M मतलब मेगा, कितना होगा 10 to the power 6 बाइट्स। क्लियर। लेकिन सोचो क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर जी का मतलब गीगा है, दैट मीन्स कितने बाइट्स होंगे 10 to the power 9 बाइट्स। ओके, करेक्ट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर दिस, क्या इंटरचेंज अगर करे, दैट मीन्स आपसे पूछा है 1 GB इज इक्वल टू हाउ मच MB। आपको डेटा मिलता है ना, आपको मोबाइल डेटा मिलता है, सपोज आपका डेली रिचार्ज है, इट इज 1.5 GB, सो वो कितना MB है, आप ये कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा है गीगा एंड MB का इंटरचेंज। सो इंटरचेंज को कैसे सॉल्व करते हैं, देखें। टू सॉल्व इंटरचेंज, चेक द डिफरेंस इन द पावर। सब लोग नोटिस करेंगे, टू चेंज विद इन द प्रीफिक्स, टू चेक द डिफरेंस in the power of both prefixes and subtract power of first minus power of second. Always power of first minus power of second. Done. So it means suppose मुझे क्वेश्चन पूछा, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि यार कन्वर्ट करना है मुझे जी को M में, तो मैंने क्या बताया कि दोनों की पावर्स आपको माइनस करने हैं। तो बेटा गीगा की पावर कितनी होती है 10 to the power 9, मेगा की पावर कितनी होती है 10 to the power 6। तो अगर आपको गीगा को मेगा में कन्वर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा 10 to the power, दोनों की पावर्स माइनस करनी है, विच मीन्स दिस, दोनों की पावर्स माइनस करना है, मतलब दिस 9 and 6 ये माइनस करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी पावर देखें तो ये हो जाएगा 9 minus 6, दैट विल रिजल्ट इन 10 to the power 3 MB। तो इस तरीके से हम इंटरचेंज भी देख सकते हैं। मतलब क्या है, इस इंटरचेंज का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस इंटरचेंज का मतलब क्या है। देखें, इस इंटरचेंज का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज आपका डेली डेटा है 1.5 GB और मैं जानना चाहता हूं कि ये डेटा विल बी हाउ मच MB। क्लियर। दैट मीन्स द कन्वर्जन इज फ्रॉम गीगा टू M। तो अगर गीगा टू M कन्वर्ट करना है तो आपको कन्वर्जन देखना पड़ेगा कि गीगा होता है 10 to the power 9, MB होता है 10 to the power 6। तो आपको फर्स्ट से सेकंड के बीच का माइनस करना पड़ेगा। सो दैट 1.5 विल रिमेन एज इट इज, इनटू आपको करना पड़ेगा 10 to the power 9 minus 6। तो बेटा 9 minus 6 क्या आएगा 10 to the power 3, दैट मीन्स 1.5 into 10 to the power 3 विच इज 1500 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो क्लियर है हमारा क्या कि 1.5 GB जो आपको डेटा मिलता है उसका मतलब होता है कि आपको डेली यूज करने के लिए कितना मिला हुआ है, 1500 MB मिला हुआ है डेटा पैक यूज करने के लिए। तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं
इंटर रिलेशन। आपको सिर्फ क्या करना है, पावर ऑफ फर्स्ट माइनस पावर ऑफ सेकंड करना है। क्लियर? सो मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो क्या करना है, पावर ऑफ फर्स्ट माइनस पावर ऑफ सेकंड। कभी भी आपको इंटर रिलेशन देखना है। अब चलें तो फिर मैं एग्जांपल्स कुछ दूंगा, आप लोग उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमें चीजों को डिस्कस करना है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अभी एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है वो देखें। कुछ लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव सॉल्व करने में दिक्कत होता है, मतलब नेगेटिव की पावर माइनस करने में दिक्कत होती है। तो कुछ रूल्स यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, सपोज लिखा हुआ है बेटा 4 माइनस 2, सबको पता है आंसर क्या आएगा 2। अच्छा, तो इसमें रूल वाली कुछ बात नहीं है, आप लोग को पता है। मैंने लिखा हुआ -3 प्लस 4, अब बताओ आंसर क्या आएगा। तो ये याद रखना है, थॉट क्या है, when there are two different symbol, that means this 4 is positive and this 2 is negative. When there are two symbols, we subtract these values. We subtract these values and answer में always higher का symbol आता है। तो higher value क्या है यहाँ पे 4, तो symbol of 4 is positive, तो answer आएगा +2. Let's say in this scenario, it is written -3 plus 4. तो which number is higher? 4. That means final symbol will be plus. और इन दोनों को subtract करो, 4 minus 3 कितना होता है 1. तो answer will be 1. Let's see one more example. It's written like 6 minus 9. So what it will be? Which is higher? 9. So 9 के आगे कौन सा symbol है? Negative. So it will be negative. और 6 minus 9 का subtract कितना होता है, या 9 minus 6 कुछ भी कर लो, subtract होता है 3. So our answer will be -3. So कभी भी माइनस करने में दो रूल एसोसिएटेड है। अगर अपोजिट साइन है, मतलब डिफरेंट साइन है, अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, हम हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे। और अगर सेम साइन है, अगर हम बात करें कि सेम साइन है दोनों का, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमेशा। क्लियर? सेम साइन मतलब एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है 3 + 4, तो इट मींस 3 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, आंसर क्या आएगा +7। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिखा हुआ है -2 ऑफ -3, तो कुछ लोग 1 और ये सब सोचने लगते हैं। क्या आइडिया है, व्हेन बोथ आर हैविंग सेम साइन, व्हेन बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 3 और 2 कितने हुए 5। बट बेटा ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इन दोनों में जो स्टूडेंट से गलती होती है वो होती है रूल नंबर 5, ये बहुत गलती होती है स्टूडेंट से, और रूल नंबर 3। सो मैं चाहता हूँ इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन कि रूल नंबर 3 और 5 में हमने कैसे सॉल्व किया है। When there are two different sign, by numerical value you always subtract, and the sign should be the higher value. The sign should be of higher value. So this should be of higher data, like 9. तो अगर ये रूल हो गए तो अब थोड़ा सा हम कन्वर्जन देख लेते हैं, जो इंटर कन्वर्जन हम देखने वाले थे। सो इंटर कन्वर्जन देखते हैं। नंबर 4 है, लेट्स से हमें कन्वर्ट करना है 2.23 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। एवरीवन, लेट्स सी हाउ विल कन्वर्ट, विल सी। हमें कन्वर्ट करना है 2.23 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है फिजिक्स में आगे इसको कन्वर्ट करने की। सेंटीमीटर को लेट्स से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अब हम टारगेट करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर मतलब क्या है बेटा, इसका प्रीफिक्स 10⁻²। ये बेटा मिलीमीटर, इसका प्रीफिक्स कितना है 10⁻3। रूल क्या है, रूल है फर्स्ट माइनस सेकेंड, रूल है फर्स्ट माइनस सेकेंड। पावर ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट की पावर कितनी है -2, माइनस हमें किसकी पावर माइनस करनी है -3। तो अब आप लोग को ये पता होगा सब लोग को कि माइनस इंटू माइनस जब करते हैं, मतलब माइनस से किसी चीज को माइनस करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट ये जो लिखा है, ये लिखा हुआ -2, माइनस माइनस
+3 लिखा हुआ है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो -2 और +3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो उसका साइन क्या आएगा? प्लस का, और डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब प्लस का 1 आएगा सॉल्विंग में। तो ये नेगेटिव वाला माइनस आप लोग को आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक अच्छी चीज क्या देखी है, ये सॉल्विंग हमने देखी है कि माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो वो वैल्यू हो जाती है प्लस। क्लियर एवरीवन? तो अगर हम फाइनल आंसर की बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2.23 इंटू 10 टू दी पावर, ये तो नंबर है 1, और 1 उसे क्या कर देगा? 1 उसे पॉजिटिव है इसलिए बड़ा कर देगा। सो 2.23 को वो क्या बना देगा? 22.3 mm। अच्छा, अभी देखने में जरूर लग रहा होगा कि यार ये मेथड तो सर बहुत लेंदी लग रहा है क्या? बेटा लेंदी नहीं है, मोस्ट एफिशिएंट है। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको बहुत जल्दी बनने लगेगा। क्लियर? तो मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अब आप लोग आंसर करें या आप पूछें क्या हुआ? ये एग्जाम्पल फिर से एक्सप्लेन करेंगे? ओके, लेट्स सी एवरीवन अगेन, लेट्स सी इट। जब हमने बात की कि वी नीड टू कन्वर्ट इट फ्रॉम दिस सेंटीमीटर टू, वी आर कन्वर्टिंग दिस वैल्यू फ्रॉम सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। क्लियर? सो व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, सेंटीमीटर का हमने लिख लिया प्रीफिक्स, इट इज 10 टू द पावर -2। मिलीमीटर का लिख लिया प्रीफिक्स। अब मैंने क्या बताया, जब बिटवीन टू प्रीफिक्सेस अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं, सो रूल क्या है? रूल है वी सबट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड। सो हमने सबट्रैक्ट किया -2 एंड -3 को बीच में सबट्रैक्ट किया। अब ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट है कि जब बीच में माइनस आ जाता है और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो वैल्यू वो क्या बन जाती है? प्लस बन जाती है। क्लियर? सो इसलिए ये वैल्यू बन जाती है प्लस। और अब हम इसे सॉल्व करें अगर, तो दीज आर टू डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन को कैसे सॉल्व करते हैं? माइनस करके। तो 3 - 2 कितना हुआ? 1। और सिंबल किसका आता है? विच इज द हायर वन। तो 3 एक हायर वन है और उसका सिंबल है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। सो हम यहाँ पर पाते हैं प्लस का 1। सो 2.23 में 10 टू द पावर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक और रूल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास रिटन है 0.00421 किलोमीटर, आपको ये कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। एवरीवन सॉल्व, यू नीड टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर। We'll follow the same procedure. This prefix, what is its worth? Kilo, it is 10 to the power 3. This prefix, it is centi, 10 to the power -2. Then the rule is we subtract the powers. So the first power is 3, then we subtract the second power. The second power is -2. As I already told, this minus into minus will make it plus. So it will become 3 plus 2, which is 5. So the correct answer will become this whole value multiplied by 10 to the power 5. And if you multiply it with 10 to the power 5, so you will get 5 zeros shifted. अगर ये 5 पावर पॉजिटिव, मतलब इस नंबर को लार्ज करना है, तो बहुत स्मॉलर नंबर है, इसको 5 जीरो से लार्ज करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 421 सेंटीमीटर। सो आई थिंक ये क्लियर होगा। काफी लोगों ने थोड़ा सा गलत किया हुआ है, हमने कुछ पूछा है और आंसर कुछ डिफरेंट ही किया है। राजवर्धन बहुत ही डिफरेंट आंसर है, बट लेट्स सी। अभी आप लोग को ये समझ में आया ना कि हाउ वी मल्टीप्लाई दीज पार्ट्स? ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स को अभी कुछ भी डाउट है वो एक बार इस लेक्चर को फिर से फॉलो अप करें और उसको चेक करने का ट्राई करें कि क्या क्या वैल्यूज होंगी, कैसे वैल्यूज चेंज होंगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं ये एग्जांपल्स और दूंगा, बट वो तब बेटर होगा जब आप सारे एग्जांपल कर पाओगे। तो सारे रूल्स आपको क्लियर पता होने चाहिए। तो रूल्स इसमें जो थे वो प्रीफिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के थे। मे भी आपको मैथमेटिक्स रूल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिक रूल्स भी लिखे हैं
आप जब लेक्चर्स रिवाइज करें तो ये सारे रूल्स को थोड़ा सा फोकस कर लें। जैसे मैंने आज अभी एक नया यूज किया है, क्या, -4 और माइनस ऑफ -3 है, मतलब हमें -4 को -3 से माइनस करना है। तो एक नई चीज हमने देखी कि यार ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, मल्टीप्लाई होके प्लस। सो दैट मीन्स अगर आप -4 को -3 के साथ सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो दिस माइनस माइनस विल मेक इट प्लस। आज का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन था कि दिस माइनस माइनस कैन मेक इट प्लस। एंड नाउ आफ्टर सॉल्विंग, दोनों डिफरेंट साइन है, विच मीन्स डिफरेंट साइन को कैसे सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। सो 4 - 3 विल बिकम 1 and which is the higher, 4. So the symbol of 4 is negative, so we'll get -1 here. तो ये थोड़े से मैथमेटिकल एस्पेक्ट आप लोग को पता होने चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे। किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू चेंज द अदर यूनिट, मींस वी विल डिस्कस सर्टेन एग्जांपल्स, देन विल गो फॉरवर्ड। क्लियर एवरीवन? तो अभी तक सबको सारा कुछ क्लियर है जो मैंने अभी डिस्कस किया है? ओके, सो I guess it's time. We'll close today's lecture. अगर किसी को डाउट है कुछ बता सकता है? Okay then, I'll close the meeting for today. Goodbye everyone.